मीड क्या कहते हैं? मीड सेज दैट एक्ट इन्वॉल्व्स ओनली वन पर्सन. मीड सेज the act only involves one person. क्योंकि हमने हमने एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा? अभी हमने उसकी स्टेजेस देखी जो बोल रहे थे. मीड सेज इन एक्ट इन्वॉल्व्स ओनली वन पर्सन बट सोशल एक्ट इन्वॉल्व्स मोर पीपल, मोर पर्संस. सोशल एक्ट इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्संस. ठीक है जी. एक्ट में एक आदमी है और सोशल एक्ट में दो या दो से ज्यादा लोग. So the gesture, so the gesture in Mead's view, so the gesture in Mead's view is the basic mechanism. Gesture is the basic mechanism in the social act, in the social act and in the social process. Social act and in the social process. More generally. So he gives an example of dog fight. Okay, he gives the example of dog fight का example देते हैं वो. फेमस एग्जांपल है ना, डॉग फाइट कहते हैं हम, कैट फाइट, डॉग फाइट. एक डॉग जो करेगा दूसरा उसके पीछे पीछे करेगा. पहला डॉग दूसरे डॉग पे अटैक करने को रेडी है तो दूसरा भी उस पर भाग कर रहा है. पहला अगर पोजीशन चेंज कर लेगा तो दूसरा भी अपनी पोजीशन इमीडिएटली चेंज कर लेगा. नहीं, दोनों चिल्लाते हैं, दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन आसपास गए, एक रुक गया, दूसरा भी रुक गया, तो जेस्चर चेंज हो गए. सो ही इज गिवन एग्जांपल ऑफ डॉग फाइट इन दैट केस. he defines gestures as movements of the first organism, movements of the first organisms which act as फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, which act as specific stimuli calling forth the FORTH socially appropriate responses, calling forth the socially appropriate responses of the second organism. ये हो गया जी gesture. He describes what is happening in a situation, what is taking place, what is happening in a situation. What is happening in a situation as conversation of gestures. Conversation of gestures. But he says, वो कहते हैं automatic or unconscious actions
automatic or unconscious actions as नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स। नॉन सिग्निफिकेंट को आप वो कर सकते हैं, विद इन कोट उसको लिख सकते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा कि अगर अचानक से डायरेक्टली जब आप कोई चीज एक्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट हो गया वो। जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं दो लोग, बस बॉक्सिंग मारनी है, बॉक्सिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो और बॉक्सिंग मार रहे हो। या बैडमिंटन में भी जैसे आप है, आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना है बस फटाफट, उसमें आपको वो नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है वो। सोशल एक्शन के हिसाब से इज सेइंग इट इज नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर। and he distinguishes humans ability to employ a thought process, thereby bringing significant gestures। significant को भी आप वो कर सकते हैं, thereby bringing significant gestures। जब थॉट प्रोसेस अप्लाई होगा तो सिग्निफिकेंट जेस्चर हो गया वो, और जब आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली व्हेन यू आर एक्टिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट जेस्चर्स। He says not all vocal gestures are important। वो कहते हैं सारे वोकल जेस्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। Not all vocal gestures are important, but it is the development of vocal gestures, leading to development of language, which makes possible the distinctive development of human life। ओके, which makes possible the distinctive, अलग से जो एक विश्लेषणात्मक जो एक मानव जीवन का जो विकास हुआ है वो वोकल जो वॉइस है जो बोलता है उसकी वजह से हुआ है। and it is ultimately responsible for the origin and growth of present human society। आज के मानव समाज के विकास और निर्माण के लिए वही जिम्मेदार है। origin and growth of present human society and knowledge, comma, with all the control over nature and over human environment, which makes science possible। I should say which science makes possible, he identifies, वो बताते हैं कि vocal gesture can affect the speaker in much the same way that it affects the listeners। vocal gesture सिर्फ ना कि सुनने वाले के लिए बल्कि जो बोल रहा है ना उस पर भी वो जो है असर करता है, उतना ही इफेक्ट डालता है।
and humans are better able to stop their vocal gestures, than physical gestures. इसलिए हम कहते हैं चुप बैठो, बैठा रहे, खुजली करता रहे, लेकिन चुप बैठ. So this is a critical ability. This is a critical ability. Critical ability and distinctive capability. Which has provided the medium of social organization in human society. है ना जी? सामाजिक एक जो परिवेश है उसके अंदर वोकल जेस्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मीड सेज कि फिजिकल जेस्चर में आपको नहीं दिख रहा आप क्या कर रहे हो, हाथ हिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं दिखेगा खुद को. लेकिन वोकल जब तक मिरर के सामने नहीं हो तो फिजिकल जेस्चर से आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है. लेकिन वोकल जेस्चर से हर मूवमेंट आपको पता चल सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस भावना से बोला, क्या किया. दैट इज व्हाई ही सेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आज सरस्वती ने बोला कार्ल मार्क्स के बारे में, दैट वाज विदाउट वीडियो वोकल जेस्चर. तो कहां से पढ़ा आपने ये? यूट्यूब से. हाँ. तो सरस्वती ने वोकल जेस्चर भी पकड़े और फिजिकल जेस्चर भी पकड़े. उन दोनों का प्रयोग करके उसने अपने वोकल जेस्चर्स को रिप्रेजेंट किया. गुड पॉइंट्स. ऐसे ही कनेक्ट करना है. सर पहले बुक से पढ़ा था, फिर मैंने उस पे मतलब थोड़ा सा. ऐसे ही होता है, चलता है, ये तो दुनिया है, होता है. तो ये हो गया जी जेस्चर्स. अगला हेडिंग दीजिए, सिग्निफिकेंट सिंबल्स. अब हमने जेस्चर की बात तो की, लेकिन सारे जेस्चर तो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मीड कहता है सिग्निफिकेंट सिंबल्स क्या है. हाँ, सिग्निफिकेंट सिंबल्स में क्या आएगा मीड के हिसाब से? तो वो कहता है इट इज ए काइंड ऑफ जेस्चर. इट इज अ काइंड ऑफ जेस्चर्स. It is a kind of gesture, and any gesture becomes significant symbol. अब ध्यान से समझो. Any kind of symbol, क्या बोला मैंने? Any kind of gesture. Any gesture becomes significant symbol when it is able to arouse in the individual. When it is able to arouse in the individual who is making them, who is making it, the same kind of response, it is supposed to elicit. यानी उकसाना, उसको, उससे रिस्पॉन्स लेना. इट इज सपोज टू elicit from those to whom the gesture is addressed.
So on that note, significant symbols are relative. हाँ रिलेटिव तो है ही, लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि भाई कोई भी जेस्चर एक सिग्निफिकेंट सिंबल पहली बात तो ह्यूमंस में ही बनेगा, एंड देन यू वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन। जैसे मुझे कुछ रिस्पॉन्स चाहिए तुमसे, तो मेरे जेस्चर्स तभी सिग्निफिकेंट बनेंगे जब भी वो सिग्निफिकेंट कहा जाएगा जब रिस्पॉन्स जो मैं तुमसे चाहता हूं और उसी रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं फिर बोलता हूं, तो वो जेस्चर हो गया, वो सिग्निफिकेंट सिंबल हो गया। और अगर मान लो मैं बोले जा रहा हूँ, तुम लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और तुम्हें सब चल रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट सिंबल नहीं हुआ। तो यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन सिर्फ सिग्निफिकेंट सिंबल ही चाहता है। काम चाहे तुम कितना ही करते रहो, उनको वो रिस्पॉन्स चाहिए जो रिस्पॉन्स एग्जामिनेशन को चाहिए। तो आंसर्स के थ्रू वो रिस्पॉन्स चाहिए, पीटी के थ्रू वो रिस्पॉन्स चाहिए। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट सिंबल्स ही है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज नॉट अ सिंबल। तो सिग्निफिकेंट सिंबल का मतलब है कि कुछ चीज चाहता है एग्जामिनेशन और कुछ नहीं चाहता है, कुछ गति से चाहता है, कुछ निश्चितता के साथ चाहता है, कुछ गहराई के साथ चाहता है। तो वो जो समझता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसा भी तुमने कहा, तो वो तो रिलेटिव है, मतलब वो तो है ही। ओके, तो ये बात है कि when gesture becomes significant when it is able to arouse in the individual who is making them the same kind of response, yeah, who is making it the same kind of response they are supposed to elicit, from those to whom the gestures is addressed or gestures are addressed. That means we can we that means we truly have a communication. We truly have a communication. We truly है important, ये truly have a communication only with significant symbols. Only with significant symbols. Only with significant symbols. अब जैसे आप मधुमक्खी है, चिड़िया है, चींटी है, वो भी कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन वो ट्रू कम्युनिकेशन नहीं है। तो एनिमल नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, पहली बात तो। So physical gestures are not ideally suited to be significant symbols. Not ideally suited to be significant symbols. क्योंकि आप अपने फिजिकल जेस्चर खुद नहीं देख सकते, इसीलिए वो आइडियली सूटेड नहीं है फिजिकल जेस्चर्स। बट वोकल अटरेंसेस, कुछ भी कर लो, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब जो इसकी भाभी ने खिला दिया इसको, तो अब इसके पास मौका था फिजिकल जेस्चर, तो अब फिजिकल जेस्चर तो ये नहीं दिखा सकती, फिर तो परमानेंटली बंद हो जाएगा सब कुछ और भाई आ जाएगा बीच में। तो इसने क्या किया, इसने फिर वोकल अटरेंसेस का प्रयोग किया। पहले प्यार से बताया होगा, लगता है कुछ गड़बड़ है, पेट में कुछ हो रहा है, खाना तो बहुत अच्छा बना था लेकिन लग रहा है मेरी कुछ दिक्कत होगी, मेरी दिक्कत होगी। पहले ऐसे किया होगा, ये नहीं किया होगा भाभी तूने क्या बना दिया, भाभी तूने क्या खिला दिया, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करेगी तो वो सिग्निफिकेंट सिंबल तो वो भी था जो पहले था और ये भी है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? अंदर भले ही क्रोध आए, लेकिन वोकल अटरेंसेस से फिर आप परिवर्तन आ जाता है ना। थोड़ा चेहरे के जेस्चर्स बदले होंगे। अब खुद के चेहरा तो नहीं देख पा रही, पेट तो देख नहीं पा रही, लेकिन आवाज से तो पता लगता है कि आपने भाई आपने सीधे थोड़ी ना आके बोल दिया होगा कि क्या बनाया ये देखो
तुमने ऐसे बटन दबाए अपने 2-3 और तुम्हारा पेट का पूरा सीटी स्कैन दिखाई दे रहा है, देख ये देख तेरा ये वाला तेरा पिज्जा और ये वाला तेरा नूडल, इसने गड़बड़ की। ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसा हुआ नहीं हुआ ऐसा। तो वोकल अटरेंसेस आ गए यहाँ पे। वोकल अटरेंसेस ने ही आपको कम्युनिकेट किया ताकि मामला भी बना रहे और बात भी कन्वे हो जाए। आपने वही किया आपने। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग, वोकल अटरेंसेस आर, व्हाट वी सेड, वोकल अटरेंसेस आर Physical gestures are not ideally suited to be significant symbols, but vocal utterances. That's it. but vocal utterances are because they become significant symbols in language. They becomes significant symbol in language. Okay, they becomes significant symbols in language. है ना जी? So language is a symbol. Language is a symbol which answers to a meaning. Which answers to a meaning in that experience of the first individual. And which also calls out the meaning in the second individual. Also calls out the meaning in the second individual. Full stop. Where the gesture reaches that situation, जब वो वहां पहुंच जाता है, where a gesture reaches that situation, it has become what we call language. It becomes on what we call language. It is now a significant symbol and it signifies certain meaning. So with language, both gestures and their meanings are communicated. So with language, the gestures and their meanings are communicated. ओके, आप सिर्फ जेस्चर कर रहे हो तो आप सिर्फ साइन लैंग्वेज में उसका वो नहीं कर सकते, मीनिंग नहीं कर सकते। एक जो है बस वही हो पाएगा, वो एक स्पेसिफिक जो है ना, जो जिस चीज के लिए जो बना है बस वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता, उसका मीनिंग वो नहीं हो सकता कन्वे। उसका मीनिंग का मतलब है कि ऑब्वियसली कन्वे तो हो ही रहा है,
बट व्हाट आई मीन टू से वो नहीं, वो बात जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो नहीं हो सकता ना। बात समझ में आई? Excuse me, sir. हम्म। Sir, in the present situation, can we correlate the emojis we use as a symbol? मैं सोच ही रहा था पहले ही, लेकिन वो भी यार लिमिटेड ही तो है उसका। अब मान लो जब आप वो हंसने वाला देते हैं वो साला ऐसे वो आंसू से निकल रहे होते हैं, तो आप कब कर रहे हो ऐसा रियल लाइफ में? आप कब कब आंसू निकले थे लास्ट टाइम? मतलब सर वो सिंबल ये दिखा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, की खुशी की वो तो आंसू है, हाँ वो तो है, वो तो है, आई एग्री। हम कर सकते हैं उन फीलिंग्स को। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स थ्रू दोज इमोजीज। मतलब अब ये मीड मीड साहब कहते तो उसको जेस्चर ही कहते, वो लैंग्वेज नहीं है वो। यस सर, इट कैन इट बी अ सिंबल और द रिलीजियस सिंबल्स? हाँ, रिलीजियस सिंबल का बड़ा सिग्निफिकेंस है। स्वास्तिक है, ओम है, स्वास्तिक है, ओम है, कुछ भी है, जीसस क्राइस्ट का है, 786 का बिल्ला है। तो यही सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो। अभी यही हम बोलने वाले थे, अभी यही हम लिखने वाले थे कि आप लिख सकते हैं द सिग्निफिकेंट सिंबल्स अलाउ पीपल। क्या होता है सिग्निफिकेंट सिंबल? दे अलाउ पीपल टू बी द स्टिमुलेटर्स ऑफ देयर ओन एक्शंस, टू बी द स्टिमुलेटर ऑफ देयर ओन एक्शंस, है ना जी? तो जैसे आप कोई वर्ड बोलते हो, आपने बोला पहाड़, तो सबका पहाड़ ही आएगा, लेकिन पहाड़ अलग अलग टाइप से आ सकता है, लेकिन आएगा पहाड़ी। ठीक है, जैसे आपने डॉग बोला, कैट बोला, तो मेंटल सेम मेंटल इमेज आएगी। और दूसरा जैसे मैंने बोला स्टिमुलेट करता है, जैसे आप जैसे एग्जांपल दिया हुआ था कि भाई जैसे आप थिएटर में और किसी ने फायर चिल्लाया, फायर फायर, तो नेचुरली सभी भागेंगे। It will elicit a same kind of response that everybody wants to run away from the situation. तो ये वाली बात है। That means Mead is adopting a pragmatic orientation. Mead is adopting a pragmatic orientation. And he is looking at the functions of, functions, okay, functions are within quote unquote कर सकते हो functions. Is looking at the functions of gestures in general, functions of gestures in general, and significant symbols in particular. So he says that function of the gesture, he says that the function of the gesture, क्या कहते हैं वो? He says the function of the gesture is to make adjustment possible. Make adjustment possible among the individuals. Among the individuals implicated in a given social act. In a given social act. With reference to the object. With reference to the object with which that act is concerned.
ये फंक्शन है जेस्चर का, ताकि सामने वाले में और उसमें जो भी चीज है सब में एक एडजस्टमेंट आए। किसी भी सोशल एक्ट के करने की जो एक्ट जो होने वाला है, मेरे जेस्चर से उस एक्ट में, सोशल एक्ट में एक रेलेवेंट और एक जो मैं चाहता हूं वैसा उस पर इम्पैक्ट आए, वैसा उसमें परिवर्तन आए, उसको जेस्चर कहते हैं। शाहरुख खान आया बालकनी में और जेस्चर ही तो है ये, इसकी जगह वो ऐसे हो जाता, ये दूसरा जेस्चर हो गया। जब वो हाथ हिला रहा है और यूं कर रहा है, या जैसे अमिताभ बच्चन, तो चलिए कंप्यूटर साहब, ये भी जेस्चर है। गब्बर जब देखता है वो भी जेस्चर है, या अमरीश पुरी जब हंसता है वो भी जेस्चर है। तो जेस्चर जो है वो एक एडजस्टमेंट पॉसिबल करता है इंडिविजुअल्स में, सिचुएशन के एक्ट के हिसाब से होती है, उसको जेस्चर कहा उन्होंने। लेकिन इनवॉलेंटरी भी हो सकते हैं जेस्चर, तो जैसे इनग्रेन्ड, आप बच्चे के साथ चल रहे हो पार्क में, पानी भरा हुआ है, तो आप बार बार बच्चे को ये नहीं बोलोगे पानी से दूर जा, पानी से दूर जा, नहीं, हम्म कुछ भी करोगे। ये थोड़ी ना बार 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 उसके हाथ में, या आप एक हाथ में एक नेम प्लेट लेके चल रहे हो। अब जैसे आज पता है कि इंदू जी को फूड पॉइजनिंग हुई, अब इंदू जी बार बार नहीं बोलेंगे कि आज ही तू कढ़ी पकौड़े खिलाएगी मुझे, या आज ही तू है जो है बिरयानी खिलाएगी। वो अपनी आंखों से जेस्चर दिखा देगी, खिचड़ी बना दे चुपचाप, बस ज्यादा ना बोल, चुपचाप खिचड़ी दे दे मेरी टेबल पे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है, हंसते हुए आएंगे सब बोलेंगे आजा आजा, अच्छा कढ़ी चावल खा ले। तो वो बिंदु जो है जरा वो आंखें दिखाएगी ऐसे कि बोलेगी नहीं। पहले तो यही होगा ना जेस्चर, भाई दिस इज ऑल्सो जेस्चर। क्यों इंदु जी? हैं? और वैसे तो मैं ज्यादा जानता नहीं, इस बारे में मैंने कोई रिसर्च की नहीं है, लेकिन लड़कियां खतरनाक जेस्चर्स करती हैं। मतलब ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है इसमें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, उनके जेस्चर्स को आज तक कोई ना समझ पाएगा भाई चाह क्या रही है। तो ये भी जेस्चर है एक। तो यानी कि हमने क्या कहा कि एक हो गया, हम कह रहे हैं कि भाई जेस्चर तो हो गया, और दैट मीन्स नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर that means non-significant gestures are always there, but significant gestures, no, I should say significant symbols, not gestures. Significant symbols, symbol होते हैं ना, वो gesture बनाएंगे ना, but significant symbols provides far greater scope for for I should say for adjustment and readjustments. For adjustment and readjustments, because it calls out, in the individual, making it the same attitude towards it, and enables him to adjust his subsequent behavior to theirs in the light of that attitude.
ओके जैसे अब एंग्री वर्बल जैसे स्कूल टीचर करते हैं, सब चुप बैठो, ऐसा बोलते ही पूरा चला जाता है। इसके बजाय सबको डंडा मारती रहे, कुछ करते रहे, उसमें ज्यादा वो है, वो ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि आपने जो है सिग्निफिकेंट सिंबल यूज किया स्पीच में। तो बच्चे को लगता है ओए पिटाई होने वाली है, पिटाई होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो स्पीकर जो है वो प्रिपेयर्ड है, वो जैसे ही उसके हिसाब से बच्चा दोबारा रिस्पॉन्स देता है, जब बोलेगा, स्पीकर प्रिपेयर्ड है, टीचर प्रिपेयर्ड है, नेक्स्ट क्या बोलना है उसको, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे बच्चे के रिस्पॉन्स के हिसाब से। एक बार में बच्चे शांत हो गए तो रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, नहीं होंगे तो दूसरे तरीके से फिर वो बोलेगी। तो सिग्निफिकेंट सिंबल बोल गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक इंटरेक्शन हुआ। ओके, एक इंटरेक्शन हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इनरिच्ड नहीं कह सकते कि भाई बहुत इनरिच्ड हो जाएगा ऐसे। रिच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करेंगे। अनकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज से रिच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझे? वो भी है कम्युनिकेशन, लेकिन वो रिच फॉर्म में नहीं हो सकता। तो कब होगा रिच फॉर्म में? हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं an important function of significant symbol is that they contribute to the emergence of mind and mental processes. They contribute to the emergence of mind and mental processes. Okay, minds and mental processes. That means thinking. जो माइंड और मेंटल प्रोसेस है वो सिर्फ सिग्निफिकेंट सिंबल की वजह से इमर्ज होते हैं। That means thinking. Okay, that means thinking. So Mead defines thinking को उन्होंने क्या बोला? As an internalized, आंतरिक है वो। थिंकिंग आंतरिक है, इंटरनलाइज्ड, और implicit conversation of the individual with himself by means of such gestures. अपने आप से बात कर रहे हो आप। So he says thinking is the same as talking to other people. मीड ने क्या बोला? भाई थिंकिंग जो है दूसरों से बात करने के बराबर है। थिंकिंग इज द सेम एज टॉकिंग टू अदर पीपल। So he is defining thinking in behaviorist terms, जो हमने शुरू में बोला था। He is defining thinking in behaviorist terms, क्योंकि वो बोल रहा है जो आप अपने आप से बात कर रहे हो वही आप औरों से, जब आप अपने आप से बात करते हो तो औरों से बात करने के बराबर है वो। That is why he is saying thinking is the same like the way you are talking to others, and it involves talking to oneself. So in behaviorist terms he is defining, because conversation involves behavior, and
and behavior also occurs within individuals. Behavior also occurs within individuals. And when it does, जब ऐसा होता है, when it does, thinking is taking place. When it does, thinking is taking place. So this is a behaviorist definition of thinking. This is a behaviorist definition of thinking. This is a behaviorist definition of thinking. ठीक है जी. दिस इज अ बिहेवियरिस्ट. ये बिहेवियरिस्ट है, मेंटलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपने उसमें आप लेके आ गए हो. So significant symbols make possible symbolic interaction. Significant symbols make possible symbolic interaction. Which makes possible complex interaction patterns. Which make possible complex interaction patterns and forms of social organization. Then would be possible through gestures alone. Then would be possible through gesture alone. तो gesture एक अलग चीज है, मतलब छोटा उसका एस्पेक्ट हो गया, सिग्निफिकेंट सिंबल्स उसका मीनिंगफुल वो हो गया. That is why David Miller says that significant symbol is the central role in Mead's theory. Is the central role in Mead's theory. ठीक है जी. समझ आई बात? इसको देखो एक बार, फिर हम अब लिख करते हैं माइंड. क्या? माइंड. अब हम करेंगे माइंड. एक बार देखिए इसको, एक सेकेंड. I'll just get back. Gestures. So you are Audible, sir.
अपने आप ही म्यूट हो गया ये। तो ये सारी चीजें वो एक्ट में कह रहे हैं, तो हम एक्ट के अंडर पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। एक्ट, अभी तक एक्ट ही हो रहा है। अब आ जाते हैं माइंड पे। माइंड, व्हाट ही सेज अबाउट माइंड। ओके, सर हाँ जी। सर ये थिंकिंग इज सेम एज टॉकिंग टू अदर पीपल, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए। उनका ये बिकॉज कहना मीट है सेज मीड दैट का थिंक। कि मान लो, मीड ये कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम्हें जो है गुस्सा आ रहा है बहुत, और तुम्हें जो है सरस्वती की गर्दन पकड़नी है। अगर तुम अपने दिमाग में भी ऐसा सोच रही हो तो इट इज इक्वल टू थिंकिंग टू अदर पर्सन। उसको बिहेवियरिस्ट एंगल से देखते हैं, वो मेंटल प्रोसेस नहीं देखते वो, क्योंकि जेस्चर्स की बात भी हो रही है ना। सो ही इज सेइंग कि जब आप जो मेंटल प्रोसेस सोचते हो वही जेस्टिकुलेशन होता है, वही वोकल है। तो उसी, अगर वो इनवॉलेंट्री है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, और वॉलेंट्री है तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वॉलेंट्री तो आप सोच समझ के एक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड करवा रहे हो जो रिस्पॉन्स चाहिए। नेता क्या करते हैं, नेताजी कितना बड़ा रिस्पॉन्स करा देते हैं। भगवंत मान पीला ही पहन रहा है बस, अब जैसे बस भाई इससे पहले ना तो कुछ हुआ है ना बाद में होगा, बस पीली पगड़ी ही सब। तो ये क्या है, ये सारे जेस्चर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जेस्चर्स हैं ये। तो थिंकिंग, असल में तो थिंकिंग आप दूसरे से कैसे बात कर सकते हो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो मेरे में चल रहा है, लेकिन मीड साहब कहते हैं कि बिकॉज सिंबॉलिक इंटरेक्शन है ये, तो उसको बिहेवियरिस्ट एंगल से देखते हैं उस चीज को, बिहेवियर का पार्ट मानते हैं। बिहेवियर हमने बोला कब आता है, जब हमने बोला ना कि भाई सिग्निफिकेंट सिंबल जो है उसी से इंटरेक्शन होता है। ओके, तो इसीलिए मीड ने आर्ग्यू किया कि थिंकिंग जो है वो सेम है लाइक टॉकिंग टू अदर पीपल। क्यों? क्योंकि आप जो है थिंकिंग में अपने आप से बात करते हो, लेकिन मीड जो है वो, मीड ने किस चीज में डिफाइन किया थिंकिंग, थिंकिंग उन्होंने बिहेवियरिस्ट टर्म्स में डिफाइन किया है। यानी कन्वर्सेशन में क्या होता है, बिहेवियर आता है निकल के, टॉकिंग करते हैं। बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल्स के अंदर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कन्वर्सेशन तो आप दो लोगों में करते हो, थिंकिंग आप अपने आप से कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने आप से भी कर रहे हो तब भी जो है वो चल रहा है, वो बिहेवियर दिख रहा है, बिहेवियर आ रहा है उससे। तो इसलिए उन्होंने कहा ये मेंटलिस्टिक नहीं है, इट इज बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है थिंकिंग की। थिंकिंग तो वरना कोई इसको इंटरनल कहेगा, कोई और थिंकर इसको कुछ और कहेगा, लेकिन मीड इसको क्या कहते हैं कि ये बिहेवियरल है। ये ही हैज डिफाइंड थिंकिंग इन बिहेवियरल टर्म्स। तो एक पर्टिकुलर उन्होंने डेफिनेशन ली है, वरना थिंकिंग में आप दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकते। ये एक और परसेप्शन है, मतलब एक और है। कैसे करोगे आप, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, और मैं कुछ और बता रहा हूँ और तुम हाँ भी बोल रहे हो, समझ आया, जरूरी थोड़ा ना समझ में आया। हो सकता है तुम नहीं बोल रहे हो लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन यू आर शोइंग एज इफ तुम्हें समझ में आया, तो वो भी जेस्चर। हाँ बोलिए ब्रिजवाला जी। हेलो। सर गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, ये भी देखो एक जेस्चर था, ये भी क्या है, ये जेस्चर है। जैसे ही उनका अनम्यूट हुआ, मैंने बोला बोलो, तो यानी मेरे पास कम्युनिकेशन आया, सिंबल आ गया, सिंबल ऑफ अनम्यूटिंग इसकी, फटाफट बोलो भाई। तो ब्रिजबाला ने फटाफट से उसका एक जो एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है, बोल सकती थी, लेकिन उनका मेंटल जब रेडी नहीं है तो उन्होंने बोला गलती से हो गया जी। तो ये भी क्या हुआ, ये अब इसको आप सिग्निफिकेंट सिंबल कहोगे कि या नहीं कहोगे इसको, ये सिग्निफिकेंट सिंबल है कि नहीं है, बताओ। म्यूट करना तो सिग्निफिकेंट सिंबल था, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था वो नॉट सिग्निफिकेंट सिंबल था। हाँ, आप क्या कह रहे हैं इंदु? सर नहीं है, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ बोले, बट वो हाँ आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोले। बिल्कुल, मैंने सोचा वो बोले और बुलवाना है, उसने नहीं बोला, तो यानी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो ये जेस्चर क्या बन गया, इनसिग्निफिकेंट बन गया। ये समझ आई बात? बिल्कुल सही बोला। ये होता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या करवाना है, तो जब करवा लिया आपने तो समझ लो वो सिग्निफिकेंट हो गया, इनरिच्ड कम्युनिकेशन हो गया वो। और आप नहीं करवा पा रहे हैं तो मतलब भाई नहीं हो पा रहा है? ये है बात, बिल्कुल सही पाला, सही बात है। आपने भी ठीक बोला किरण जी कि मैंने, अनम्यूट सिग्निफिकेंट है अपने आप, जब हर जगह देखा जाता है ना, कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, वो सिग्निफिकेंट है ना।
उस हिसाब से वो सिग्निफिकेंट है, बाकी नहीं है। अब यही चीज आप जब नॉर्मल लाइफ में करते हो तो इट डजंट मैटर है। तो यही बात है। समझ आया भाई आंचल जी? Yes, sir. Sir, it means we can't use in it. Common sense we can't use in it. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। कॉमन सेंस नहीं चल सकती यहाँ पे। सोशियोलॉजी का जो कॉमन सेंस जो हमने पढ़ा था, तो कॉमन सेंस में एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे अब ये कॉमन सेंस नहीं है। ये जेस्चर इज नॉट कॉमन सेंस वाला जेस्चर, मीड ने सिग्निफिकेंट माना ही नहीं है। वो तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में सिग्निफिकेंट मान रहा है, जो चीज जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इलिसिट होगा तो माना जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली ना। तो इसीलिए कोचिंग का भी एक वो होता है, इंडस्ट्री का भी एक वो है, बायजूस का भी एक वो है। वो दिए जा रहा है, पूरा फुल पेज का देगा, वो बोलेगा 6ठी से 12वीं मैं ही करा दूंगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, जो सारे क्या है, ये सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं, दे आर ऑल सिंबल्स। तो माइंड आ गए, हम माइंड पे आ गए। तो माइंड क्या है? माइंड इज डिफाइंड बाय मीड एज ए प्रोसेस। उसको भी उसने प्रोसेस ही बताया है। माइंड इज डिफाइंड बाय मीड एज ए प्रोसेस एंड नॉट एज ए थिंग। And not a thing. Defined as a process and not a thing, comma, as an inner conversation with oneself. Inner conversation with oneself is mind. Inner conversation with oneself, comma, is not found within individuals. Is not found within individuals, semicolon. It is not intracranial. cranial word is हम यूज करते हैं ब्रेन के लिए। It is not intracranial, but is a social phenomena. It is not intracranial, but is a social phenomena. Because, क्यों बोला उन्होंने ऐसा? Because it arises and develops within the social process. It arises and develops within the social process and is an integral part of that process. And is an integral part of that process. Integral part of that process. The social process precedes the mind. The social process precedes the mind. And it is not product of the mind. कर लो बात। सोशल प्रोसेस जो है वो माइंड से पहले आता है और वो माइंड का प्रोडक्ट नहीं है। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। Therefore, mind is also defined functionally. Therefore, mind is also defined functionally. Mind is also defined functionally rather than substantially. Rather than substantially. Substantively rather than substantively. स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, उसको भी उन्होंने फंक्शन के आधार पे बता दिया। Substantively. So it is having similarities with consciousness. It is having similarities with consciousness.
क्योंकि हमने कॉन्शियसनेस में क्या बोला कि ह्यूमंस की एबिलिटी है वो अलग है रिस्पॉन्स में दूसरों से, और दूसरों से वो रिस्पॉन्स ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमने देख लिया। तो माइंड में क्या अलग हुआ फिर? हमने बोला लास्ट में, अभी लास्ट में हमने क्या बोला? माइंड इज डिफाइंड एज It is फंक्शनल। having similarity. हाँ, इट इज हैविंग सिमिलरिटीज विद कॉन्शियसनेस ना, ये बोला ना हमने। बट इट इज डिस्टिंक्ट, बट इट्स हम लिखेंगे बट इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इज, उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइंड का? इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो मीड ने बोला मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद फिर समझ आ जाएगा, वो बात ही खत्म। एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल quote start to call out in himself, कोट के अंदर लिखिए to call out in himself, to call out in himself not simply a single response of the other, not simply a single response, नहीं चाहिए single response of the other, but the response comma so to speak comma, but the response comma so to speak comma of the community as a whole, full stop, of the community as a whole, full stop. That is what gives to an individual, that is what gives to an individual what we term mind, what we term mind, full stop. To do anything now means a certain organized response. Certain organized response, semicolon. And if one has that response, if one has, I should say, if one has in itself, if one has in itself that response, comma, he has what we term mind, he has what we term mind. समझ आई जी बात? हाँ, क्यों जी, बात समझ में आई? सर नहीं लास्ट लाइन, पूछो। हाँ, सर ये एंड इफ वन हैज इन इटसेल्फ दैट रिस्पांस ही हैज व्हाट ही टर्म माइंड, ये हाँ। अनक्लियर है, मतलब समझ नहीं क्यों? आया। ऊपर वाला क्लियर कैसे हो सकता है जब नीचे वाला नहीं हो रहा? तो ऊपर सर वाला, उन्होंने पहले तो बोल दिया हाँ क्या बोल दिया? कि अगर हम सिंगल रिस्पांस होता है मतलब, हाँ, तो फिर वो अदर्स को हम समझाते हैं, लेकिन नहीं, उससे हमें होता है कि भाई ऐसे नहीं बोल रहा वो ये कह रहा है कि सिंगल रिस्पांस भी माइंड हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है जस्ट सिंगल रिस्पांस नहीं है ये।
जब आप कम्युनिटी, जब आप सोशल रिस्पॉन्स दे रहे हो, जब आप उसी अंतरंगता से जब आप सोशल रिस्पॉन्स कर रहे हो, सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी अपने कल्चर, अपने सिस्टम के साथ, तो इंडिविजुअल में हम कहते हैं कि माइंड। यानी कि अब आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो ऑर्गेनाइज्ड है वो, और अगर किसी में एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स को दे सके, तो हम उसको कहेंगे उसके पास माइंड है। जो ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल रिस्पॉन्स और जो सोशल रिस्पॉन्स, जो हमने पहले ऊपर जो जेस्चर में और उससे पहले हमने इम्पल्स से पूरी बात की, अगर वो नहीं है तो माइंड हो नहीं सकता। अब मुझे तुम बताओ, तुम लोगों के पास माइंड है कि नहीं है? ये है ना, अगर तुम्हें पता लग गया तुम्हारे पास है नहीं है, तो मुझे समझ में आएगा तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। क्यों जी? भाई वो शुरू से जो लेके चल रहा है, वहां से देखो ना, जब उसने इम्पल्स और वो 4 एक्शन बताए थे, फिर उसने एक्ट, सब कुछ एक्ट में हो रहा है ये। अब तुम बताओ तुम लोगों का माइंड है या नहीं है? क्योंकि वरना मैं तो सेल्फ पे पहुंच है जाऊंगा। सर, हैं? सर है, because we have stimuli and we respond to the and socialization process is there, so that's why we have mind. ठीक है भाई, सही है। फिर तो मीट को काम करने की जरूरत ही क्या थी? अगर हर आदमी के पास माइंड है तो मीट तो पागल था। तो देखो मीट कुछ कर रहा है, हैं? क्या मीट मानता है सबके पास माइंड है? सर माइंड तो सबके पास है, बस उनके पास डायरेक्शन अलग अलग होती है। तुम भी कितनी बार सरस्वती किसी दूसरे को कहती होगी माइंडलेस। हिंदुस्तान में तो सबसे फेवरेट वर्ड है मेंटल है क्या, भले मेंटल शब्द का मतलब ना पता हो। और ये बोलने के बाद जो सिग्निफिकेंट सिंबल और जो जेस्चर्स होते हैं उनकी तो पूछिए मत। आप किसी को एक बार मेंटल बोल दो और पूरा दिन अगर खराब ना हो जाए तुम्हारा और उसका, तो मुझे बताना। क्यों इंदु सर जी? मीड का फोकस तो कॉन्शियसनेस करने के लिए ना, मतलब वो हैं? तो इन लोगों को, मीड का जो फोकस है वो तो हमें अवेयर बनाने के लिए है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। तो बट माइंड तो है ही हमारे पास, तभी तो हम कर रहे हैं कुछ। हाँ, कुछ तो कर ही रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मीड कह रहा है जो कुछ करता है उसे वो माइंडफुल नहीं मानता वो। ऐसे तो सभी के पास है। देखो, मीड एक हायर पर्पस के हिसाब से चीजों को बता रहा है। सोसाइटी के लिए अभी तो आए नहीं है उस चीज पे हम, क्योंकि उसने भी बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत चीज हमने बोली थी जैसे वो कर रहा है, तो वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक पैटर्न है। तो ऑब्वियसली व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, पर वो कॉमन सेंसिकल अप्रोच से लोगी तो ट्रू हो जाएगा। माइंड सबके पास है, सर कह रहे मेरे पास माइंड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये वाला तो कॉमन सेंस अप्रोच है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच से ही इज सेइंग कि सबके पास एक होना चाहिए, तभी सोसाइटी आगे बढ़ती है ना। तो माइंड को भी वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम एक लाइन और लिख सकते हैं, he also looks at mind in a pragmatic way. He also looks at mind in a pragmatic way. That is, mind involving thought processes. Mind involving thought processes oriented toward problem solving. Oriented toward problem solving. Oriented toward problem solving in the real world. In the real world, which is having lots of problems. Which is having lots of problems. And mind try to solve these problems. Mind try to solve these problems to permit people to operate effectively in the world.
ठीक है जी, Sir, हाँ बोलो। is it to operate effectively in the world? Permit people to operate to more, simple English, permit people to operate more effectively in the world, more effectively। तो अब मुझे बताओ कि जब मान लो, चलो सिंपल सी बात है, पहली बार तो जिंदगी में पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ पढ़ के इतने बड़े हुए हो, सब कुछ हुए हो, तो अकॉर्डिंग टू मीड, अगर हम मीड की डेफिनेशन ले लें, अभी की जो हमने अभी किया, आज किया, माइंड जो हमने, माइंड अभी आंचल ने भी माइंड पे अपनी जैसे कहते हैं तकरीर, अपनी अपनी अपने उसने आइडियाज को प्रस्तुत किया। अब बताओ, जब हमने पहले इस तरीके से ये चीज नहीं की थी, या तुमने, ऐसा तो है नहीं कि तुम में से किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं, एक दो लोगों ने तो पढ़ी भी है, और अगर मान लो खुद भी पढ़ते किसी पुस्तक से, तो क्या एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ते? नो बताओ सर। बताओ, नहीं पढ़ते ना ऐसे, तो बस फिर माइंड नहीं है। बात खत्म। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई पेपर तो सभी हम लिखेंगे, पढ़ सकते हैं ना सर? आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ना सीख रहे हो। यस सर, सीखने में और सीखने में फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। सर, इसका इसीलिए मतलब ये होना चाहिए कि हमें अगर कोई समझा रहा है तो हमें तो वो बात भी समझ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो समझा रहा है, काश मैंने अपने आप भी पहले वैसे ही सोचा होता। मीड ये कह रहा है, क्योंकि मीड कहता है थिंकिंग खुद से भी होती है। जब कोई और आपको समझा रहा है और तब समझ में आ रही है, और वो चीज खुद से नहीं की कभी भी, तो मीड कह रहा है कि थिंकिंग इज ए प्रोसेस विच वन टॉक्स विद वन सेल्फ। तो कहां किया वो? क्योंकि आपने खुद से नहीं किया, इसीलिए आपका सोशल रिस्पॉन्स और सोशल प्रोसेस भी पुअर हो गया, और वो पुअर हो गया तो इसका मतलब आपने इंटरेक्शन नहीं किया, मीनिंगफुल इनरिच इंटरेक्शन नहीं किया, और इनरिच इंटरेक्शन नहीं हुआ तो माइंड नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू मीड। ओके, अकॉर्डिंग टू मीड। क्यों इंदु जी? हाँ किरण जी बोले। Sir, as he said that mind is not an intracranial process. हाँ मतलब बिल्कुल एक social phenomena है. बिल्कुल। So the situation where अगर हम अपनी education की बात करें, we have certain situations कि ऐसा होता है तो हमें ये करना है, ऐसा होता है तो ये करना है. वो in that वो situation इंट्राक्रेनियल, yes वो sir, इंट्राक्रेनियल हो गया वो। yes sir, वो brain use हो रहा है वहाँ पे. But in the real world situation, when we face this situation, we act consciously. वो situation different हो सकती है उससे जो हमने theoretical पढ़ी थी. For example, somebody who is reading from the book, theoretical जो है, that is not mind, that is the brain is working there. बिल्कुल But बिल्कुल। actual world, when we operate these things consciously and in the social situation, हम जो response करेंगे, that is by using mind. एग्रीड, ये है 100%। तो मैं उसी की परसेंटेज तो पूछ रहा था कि किसने यूज किया। वही अगर कोई यूज कर ले तो फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, नहीं किरण जी? Yes sir. फिर इतना आसान थोड़ी ना है वो। तो अब जो सरस्वती ने प्रश्न उठाया कि फिर हमें समझ क्यों आ रहा है, वो समझ इसलिए आ रहा है बिकॉज आई एम गिविंग सर्टेन जेस्चर्स एंड आई एम इलिसिटिंग सर्टेन रिस्पॉन्स फ्रॉम इट। तो मैं मजबूर कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स दो। तो ये भी तो कॉन्शियस एक्ट हो गया, सोशल फैक्ट। वी आर क्रिएटिंग ए सोशल फैक्ट। हाँ भाई, ब्याह होता है किसी का, तो ब्याह में लोग आजकल खुद ही नाचते हैं, खुद ही नाचते हैं। मेरी समझ ही नहीं है, मतलब ये भी एक नया फिनोमेना हो गया है कि एक पीपल डांस ऑन, खुद ही नाचेंगे, सब कुछ हो गया। मतलब ये एक चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। अच्छी बात भी है ये, अच्छा भी है, मतलब कल्चर, कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो रही हैं। लड़की भी डांस करती है, पर्दा सिस्टम भी तकरीबन हट ही गया है अब तो। पहले तो आप शक्ल भी नहीं देखते थे, पहले तो मैरिज से पहले एक कल्चर था, एक कल्चर है अभी भी। तो सोशल वर्ल्ड के हिसाब से हमें देखना है। बिल्कुल सही कहा। अब समझ आई बात या नहीं आई? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। Yes sir. थैंक यू।
सेल्फ, सेल्फ। अब सेल्फ क्या बोला हम देख लेते हैं। सर मेड ने जब पहली बार पढ़ा था तो क्या उसको पहली बार में समझ में आने लग गया था? हमने उस दिन क्या कहा था मीड साहब के बारे में? वो दुनिया में खो जाते थे जब वो बोलते थे, और वो अपने विचारों का ताना बाना बनाते चले जाते थे, बनाते चले जाते थे। इतना बढ़िया बोलते थे, वो बात करते थे, सब कुछ इन्वॉल्व कर लेते थे अपने लेक्चर में कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाएगा, और बीच में बोलने नहीं देते थे। ये तो उनके स्टूडेंट्स ने उन्होंने नहीं किया, उनके स्टूडेंट्स ने जो है उनकी चीजों को फिल्टर करके उन्हें ऊंचा दर्जा दिया कि प्रभु आप हो। उसने नहीं खुद को प्रभु बनाया। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक बार में तो कैसे हो सकता है सरस्वती? है असंभव। निरंतरता से उकड़ते चले गए, निरंतरता से उकड़ते चले गए, उनके लिए नॉर्मल हो गया वो। जैसे मुझे पता लग जाता है, कोई ये कहता है कि मैं पेपर दे रहा हूं, मैं दे दे भाई कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी नॉर्मल है, उसे लगता है मैं भी नॉर्मल हूं, पर मैं नॉर्मल नहीं बोल रहा हूं, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, सब सोचते हैं तो नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड ही यही है, सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड ही यही है कि ना को स्वीकार करके हाँ में परिवर्तन करना है। हाँ बोल के ना हो जाए उसमें क्या फायदा, फिर तो हार गए। पहले ना और फिर हाँ, यही डर सबने यही किया है। डरखाइम से लेके कार्ल मार्क्स से लेके सब। पॉजिटिव सोशियोलॉजी है क्या? हमने कितनी बार पढ़ा था पहले, हमने शुरू में बात भी की थी। इट इज पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, इट इज ए पॉजिटिव चेंज। क्रिटिकली पॉजिटिव चेंज लेके आना ही सोशियोलॉजी का रोल है, और कोई रोल ही नहीं है इसका। अब थ्योरेटिकली तो आप कह दो कि महिलाएं सबसे खुश हैं, तो आप ये कहाँ एक्नॉलेज कर रहे हो कि महिलाएं खुश नहीं है? पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना महिलाएं खुश नहीं है, फिर आप उनकी खुशी की बात करोगे। सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूं। वहीं आप मतलब ऐसा तो नेतागिरी में तो ऐसा होता नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं। अभी आप देखो चुनाव में क्या क्या बोला गया था सबने एक दूसरे को, और बोलने के साथ ही भूल गए। अगले दिन कोई मतलब नहीं, जिन्ना और ये और वो और इसका डायनेस्टी फलाना, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी चलती है। इसीलिए जनरल आदमी क्या बोलता है, आम आदमी, अरे शाम को पार्टी में सारे एक हैं ये। अरे भाई वो रोल दूसरा है, वो रोल दूसरा है, वो रोल दूसरा है और वो रोल दूसरा है। लेकिन आम आदमी क्योंकि माइंड नहीं है उसके पास, वो उसका वही रूप पकड़ लेता है बस। इसीलिए जब कोई पार्टी बदलता है तो कितनी आसानी से एक लाइन में बोलता है, यही पार्टी काम कर रही है, यही हो रहा है, वो हो रहा है, चाहे वो 20-25 साल वहां रहा हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्किल्स हैं ये। दीज आर नॉट नॉर्मल थिंग्स। इसीलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी से हमेशा हाई है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद द मासेस। भगवंत मान ने कौन सा, भगवंत मान के नीचे सारे आईएएस हो गए अब। तो यू कांट कॉल हिम कॉमेडियन, जस्ट कॉमेडियन। ही इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले भी बताया था, प्राइमेसी इज ऑफ द पोस्ट, because the post is representing people's aspirations. So people's aspiration and people's image has to be protected. भगवंत मान क्या है, वो तो था। और अब देखो, अब आप मिल लो अमरिंदर सिंह से, अपॉइंटमेंट ले लो, मिल जाएगा। तुम सब भी ले सकते हो कि हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपसे एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैं गारंटी बोल रहा हूं तुम्हें इंटरव्यू मिल जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर से लेके दिखाओ, क्योंकि वहां पे पब्लिक पैरामीटर आ जाएगा कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। उसके हिसाब से तुम्हें मौका मिलेगा, जब तक आप किसी को जानते नहीं हो। गॉट इट? सेम विद द एमएलए एंड एक्स एमएलए। एक्स एमएलए से जब मर्जी तुम अपने ब्याह में बुला लो उसको, सुबह शाम 2 घंटे खड़ा होकर चला जाएगा। और जो जो इलेक्टेड है और जो प्रेजेंट है, उसको वो देखो ना। समझ आई बात? तो ये आम आदमी से खास आदमी बनने का प्रोसेस है, इतना आसान ऐसे नहीं है। और लिया जब तक नहीं हो सकता, जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते, तब तक तो प्रोसेस चल ही रहा है माइंड का। सिलेक्शन होते ही आपका एक दूसरा लेवल आ जाएगा, उससे पहले नहीं है वो। तो उसके लिए तो वेट करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और अगर मीड की भाषा में गए
तो पेपर से वो रिस्पॉन्स लेना है, तब आप कह पाओगे ना ऐसा। तो पेपर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, ये जिसको समझ में आ गया वो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इतना सोचना कौन चाहता है? इतना सोचने से अच्छा तो है भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। समझ आई बात? मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द मेंटल प्रोसेस। प्रोसेस इसलिए उसने थिंग नहीं कहा, प्रोसेस का। सेल्फ में क्या बोल रहा है वो? सेल्फ में भी वही कह रहे हैं। सेल्फ इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। सेल्फ इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। For Mead, self is defined as a process that means it emerges over time. Self is emerging over time. That means it emerges over time, and a child is not born with the self. People acquire selves. People acquire selves when they are able to take themselves as objects. When they are able to take themselves as objects. That is they are able to act and respond to themselves. That is, they are able to act and respond to themselves as they would do to any other object in their environment. As they would do to any other object in environment. Therefore the self therefore the self has the ability to act as a subject, that is source of action, and to take itself as an object. And to take itself as an object. बात समझ में आई? पढ़ो इसको दोबारा। अन्ना जी, that also means self is a product of social process. Self is a product of social process or processes.
social process or processes of communication between human beings. समझ आई बात? बताइए। कोई बात समझ नहीं आ रही तो बताइए। सर अभी तो समझ नहीं आया सेल्फ। क्या क्या कर रहे हैं आप? सर सेल्फ समझ नहीं आया। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सर आई डिडंट गेट व्हाट ही इज सेइंग फॉर सेल्फ। आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया? ओके। देखिए वो ये कह रहे हैं, मीट साहब कह रहे हैं कि, एक सेकेंड, मीट साहब कह रहे हैं कि जो सेल्फ होता है ना, वो भी एक तरीके के सोशल प्रोसेस को ही प्रिसीड करेगा। पहली बात तो जैसे माइंड हमने बोला था, माइंड भी सोशल प्रोसेस को प्रिसीड कर रहा है, ऐसे ही सेल्फ भी सोशल प्रोसेस को ही प्रिसीड करेगा। तो सेल्फ को भी उन्होंने एक प्रोसेस बताया और उन्होंने साथ में कहा कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ के साथ पैदा नहीं हो रहा है, वो टाइम के साथ सेल्फ एक्वायर हो रहा है। बच्चा जो पैदा हुआ उसके पास कोई सेल्फ नहीं है, उसने इन्वायरमेंट से और अपने इमर्जेंस टाइम के साथ उसने सेल्फ एक्वायर किया। और उसको सेल्फ जब कहा जाएगा, पीपल को जब सेल्फ मिल जाता है, जब वो सारी चीजों को, बाहर वालों को और अंदर वालों को भी बराबर देख सकता है। यानी कि जो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए बाहर के लिए, एक्ट और जो रिस्पॉन्स कर रहा है बाहर की चीजों के लिए, वो वैसे ही करेगा जैसा वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप जब तक सेल्फ नहीं बनते हो, जब तक आपको अपना पूरी तरीके से आपका रिस्पॉन्स जो है वो जो किसी, अगर आपने आपकी जगह सामने वाला कोई और है तो उसको भी आप वैसा ही रिस्पॉन्स देते हो, खुद को भी वैसा ही देते हो, तो आप सेल्फ हो, नहीं तो सेल्फ नहीं। यानी आपका प्रोसेस चल रहा है अभी सेल्फ का। बात समझ में आई? यानी अरे यार, कबीर ने जैसे कहा है, गांधी ने भी तो कहा है, डू टू योर सेल्फ व्हाट यू डू टू अदर्स। तो कौन करता है ऐसा? तो सेल्फ नहीं है। कहते हैं ना, हिंदी के रोज सुबह गुड मॉर्निंग में लोग क्या भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, पूरी दुनिया में क्या चलता है, आज का सुविचार, औरों के साथ वो कीजिए जो आप अपने साथ होना देना दिखना चाहते हैं। तो विचार ही क्यों आता है अगर सेल्फ होता तो मीड कह रहा है, जब इस लायक हो जाओ कि अपने आप को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखोगे पूरे इन्वायरमेंट में, जैसे सब इन्वायरमेंट को देखते हो उतनी ही ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप सेल्फ हो गए हो। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो मैं बताता हूं सेल्फ क्या है। जैसे सेल्फ ये है कि भाई मान लो एक सज्जन है, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने क्या किया, बीच में कोई और सज्जन थे कि भाई नोट्स चाहिए, नोट्स मिल सकते हैं सर, नोट्स सर नोट्स दे दीजिए। मैंने कहा नोट्स तो है, हर जगह है जी, आप ले लो नोट्स, आप जब मर्जी ले लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कम्युनिकेट किया, यानी मैंने जो अभी मीड जो हमने पढ़ा, मैं उसी का एग्जांपल शायद यहाँ फिट हो जाएगा। उन्होंने क्या मांगे, नोट्स। मैंने मना किया? मैंने लेकिन ये नहीं बोला कि हाँ जी नोट्स ले लो। मैंने कहा नोट्स तो मिल ही जाएंगे, नोट्स तो पड़े हुए हैं बहुत हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ले लो नोट्स। फिर मैंने उनको आधा पौना घंटा बात की। उनकी डॉटर है 11th क्लास में, 12th में आ जाएगी अब।
मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बार फिर से बात की। मैंने कहा यार इतना ऐसा ही है तो आप एक वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो मिलने से पहले, जब मिलोगे कभी। तो बोले नहीं नहीं, और वो जुडिशरी में हाई ऑफिसर है वो, ठीक है ना, जुडिशरी में ही इज ए सीनियर ऑफिसर, जज है बेसिकली वो, ऑफिसर नहीं कहना चाहिए मुझे, जज कहना चाहिए, ही इज ए जज, लेकिन बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड। वो सरस्वती के राज्य से हैं वो, ठीक है जी। तो उनसे मुझे बात करके पता चला कि लोअर जुडिशरी राजस्थान में मिनिमम करप्ट है, लेस देन इवन 10%, वरना कोई नहीं बोलता ऐसी बात। तो जी जब बात हुई तो वो तो हैरान। मैंने फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा 1-2 दिन बात करके। मैंने कहा ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमने किया, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो चीज हो रही है, वो आपने एक्सपेक्ट की थी क्या कि ऐसा होगा? नहीं जी, बोला जी मैंने तो नहीं की। तो यानी वो सेल्फ हो गया। यानी कि अगर वो ऐसा कर पाते पहले से ही, वो कर पाते तो वो सेल्फ होते, लेकिन मैंने तो वैसे ही किया ना। हाँ, मैंने तो ऑब्जेक्ट की तरह किया ना पूरा, कि मैंने तो एक ऑब्जेक्ट की तरीके से किया। सामने वाला उस तरीके से पूरी तरह से सेल्फ नहीं है, तो हो सकता है मेरी बात को वो पहले दुनिया की तरीके से देखेगा, यार बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये होगा, ये चाल। मैं तो लेकिन उससे ऊपर उठ गया, मैंने तो ऑब्जेक्ट बना दिया अपने आप को। बात समझ में आई? अब समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हो गया सेल्फ। We can say self itself has both subjectivity as well as objectivity. He follows all action of self as a subject. हाँ ठीक है, मतलब आप थोड़ा गोलमोल हो गया, लेकिन बात ठीक है। लेकिन बात समझ में आई सेल्फ के क्या कह रहा है वो? मीड क्या कह रहा है? मीड सोशल एक्शन की बात कर रहा है ना। तो सेल्फ बनना, तो जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी सेल्फ हैं किसी भी चीज में, कहीं पर भी, सब जगह भाई, लेकिन प्री डिफाइंड सोशल प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल पुतिन है। अब क्या बातें आ रही हैं? पुतिन आइसोलेटेड है, पुतिन डिप्रेस्ड है, पुतिन किसी से बात नहीं करता, क्रेमलिन भी शॉक में है, ही इज गिविंग न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल का ऑर्डर दे रहा है वो। तो ये ऐसे एग्जांपल भी आते हैं। तो वो ये कह रहा है सेल्फ इज एक्वायर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जब उसके बाद आप इन्वायरमेंट से वैसे ही रिएक्ट और एक्ट करते हो जैसे आप खुद के साथ कर रहे हो, एकदम इतने, मतलब जिसे अंग्रेजी में प्रोफेशनल कहोगे आप, एक तरीके से मैकेनिकल भी कह सकते हो, लेकिन ये मैकेनिकल है नहीं। तो वो कह रहा है आप सेल्फ बन गए। आप समझ में? Self is an identity. हाँ Self is an identity. बिल्कुल, हाँ सेल्फ इज एन आइडेंटिटी, बिल्कुल सही कहा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो 50 मीटिंग भी कर लेता है, मिनटों मिनटों में चीजें निपटाता है, वो एक चल रहा है वो। ये होनी चाहिए कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी है ये। आईपीएस होता है, जैसे कोई भी ऑफिसर लगा लीजिए फॉर दैट मैटर, वो सेल्फ हो गया वो, ठीक है। हर जगह ये, हर जगह है। यानी हमने क्या कहा? हमने कहा ना अभी, द सेल्फ हैज द एबिलिटी टू बोथ एक्ट एज अ सब्जेक्ट, यानी सोर्स ऑफ एक्शन भी है, लिखा ना हमने, ये नहीं लिखा है इंदु? हाँ तो वही बात है, देखो सोर्स ऑफ एक्शन भी हो गया वो, और वो अपने आप को ऑब्जेक्ट भी ले लेता है। यानी मैं आपको इमिनेट भी इमिनेट भी मेरे को आपको बताना भी है, समझाना भी है, और ये भी एश्योर करना है कि वो समझ भी वैसे ही आए जैसे आना चाहिए। और मैं बता भी रहा हूं तो मैं सोर्स भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट में कैसे हो गया कि जब आप मुझे बता रहे हो तो मैं आपके लेवल पे आ रहा हूं, मैं अपने ही लेवल पे नहीं हूं। तो ये जो है, ये है सेल्फ। जैसे सरस्वती ने कोशिश की कि वो सेल्फ को डिस्कवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करे, तो थोड़ा रूटीन आएगा, सिस्टम आएगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगी, इंटरेक्शन आएगा, तो आप सेल्फ की तरफ बढ़ोगे। ओके। और हमने बोला ना कि सेल्फ, दैट सेल्फ डू नॉट प्रीसीड सोसाइटी, बोला ना हमने? ये बोला कि नहीं बोला? Yes, sir. If a child is not born with self, and as it proceeds, और कोई mind की तरह नहीं निकल। लास्ट हमने क्या लिखा है? That also means self is the product of social process or processes or communication of human beings. Social process or processes of communication between human beings.
हाँ, उसका उसका रिजल्ट है वो। ओके, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। That means it is in contrast. That means it is in contrast to many psychological theories. It is in contrast to many psychological theories which treat self as an entity, that exists inside of a person. सेल्फ को तो इनसाइड कहते हैं ना, आदमी के अंदर सेल्फ है, ऐसा कहते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरीज में तो। बट मीड क्या कहता है, ये है देखने वाली बात। बट मीड फिक्सेस या इम्प्लांट कहना चाहिए, मीड इम्प्लांट द सेल्फ इन सोशल एक्सपीरियंस एंड सोशल प्रोसेसेस। मीड इम्प्लांट सेल्फ इन सोशल एक्सपीरियंस एंड सोशल प्रोसेसेस, thereby giving behavioristic sense to self. behavioristic सेंस दे दी सेल्फ को। बिहेवियरिस्टिक सेंस टू सेल्फ, ठीक है जी, बिहेवियरिस्टिक सेंस ऑफ द सेल्फ कहना चाहिए, बिहेवियरिस्टिक सेंस ऑफ द सेल्फ। Therefore he says that self is where one does respond to that, which he addresses to another. One does respond to that which he addresses to another. Okay, one does respond. One मैं हूं, I should respond to that what I am addressing to other. And where that response of his own becomes a part of his conduct, comma, where he not only hears himself but responds to himself, comma, talks and replies to himself, as truly as other person replies to him. As truly as other person replies to him. Comma, that we have behavior in which the individual becomes object to themselves. यानी कि मीड कह रहा है कि अगर सेल्फ अपने आप को मानता हूं तो
मुझे जो है, जो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, उसको मुझे खुद भी अपने आप को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मुझे खुद भी अपने आप से बात करनी चाहिए, खुद भी अपने आप से टॉक होना चाहिए मेरा, और वो एज ट्रूली एज आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, एंड देन ओनली आई विल बिकम एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट रिमेन एन इंडिविजुअल। इसको जोर से पढ़ोगे ना जब अपने आप में, तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आने वाला। वो हो गया सेल्फ जो मैं कह रहा हूं। यानी आप अपने एनवायरनमेंट के, अपने सिस्टम के जो चारों तरफ है, उसके हिसाब से आप इतना आप क्लैरिटी के साथ आपने अपने आप को कॉन्शियसनेस के साथ अपने को रिस्पॉन्ड कर दिया कि आप आपके जेस्चर सिग्निफिकेंट हो गए, आप सेल्फ बन गए, कंट्रोल्ड है एक तरीके से, ये रियलिस्टिक बात हो रही है। फिर वो क्या कहना चाहता है? दैट मीन्स self is self is self is just self is just another aspect of the overall social process. Self is just another aspect of overall process. Overall social process, I should say, overall social process of which the individual is a part. भाई हम सारे किसके पार्ट प्रूव करना चाह रहे हैं? वो सोशल प्रोसेस के पार्ट हो, तो वो कह रहा है सेल्फ जो है एक सोशल प्रोसेस का पार्ट है। मतलब आप कहीं और हो और आप अपने आप को कुछ और मानते हो। जैसे अब आप हो, आप मानो मेरा मेरा मुसीबत है, कैसे तैयारी होगी, कैसे कर पाएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, और पता नहीं कैसे होगा, तो ये सेल्फ नहीं है। जब आप सारी चीज स्वीकार करके ऊपर बैठ के एकदम जो अप्रोप्रिएट और जो एग्जैक्ट बिहेवियर होना चाहिए और जो वर्क होना चाहिए, जब आप वो करते हो तो आप सेल्फ बन गए। यानी डेजर्ट में भी जो सिविलाइजेशन को प्रिज्यूम कर लेगा और ये सोच के सारा एक्ट अपने आप से कर रहा है कि ये तो सिविलाइजेशन है और ये ऐसे है, तो वो एक्ट वो हो गया सेल्फ। यानी सिचुएशन का रिएक्ट ना करके अपनी सिचुएशन को क्रिएट करना सेल्फ है, और वो सोशल प्रोसेस का पार्ट बता रहा है उसको। एबिलिटी टू टेक हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लो तो नेचुरली फिर तो ये इमोशन फिमोशन सब कंट्रोल हो गया ना, सब कुछ। हाँ, जैसे लॉर्ड कृष्णा, भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा क्या हो गए? सेल्फ हो गए एक तरीके से। मतलब बात समझ में आई या नहीं आई? Can we say there should be no difference in words and deeds? हाँ, जनरल वर्ड में कह लो, लेकिन अब हो सकता है ना वर्ड्स और डीड सोशल Just for प्रोसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मतलब नहीं, वर्ड्स और डीड्स में नहीं, आपने अपने आप को एक्वायर करके कुछ और मान लिया और वो आपने एक्ट भी किया, वो सेल्फ कह रहा है वो। हाँ बिल्कुल, वर्ड्स एंड डीड्स, लेकिन वर्ड्स आपने फालतू सोचे और फिर अपने आप को डीड भी छोटा ही हो गया, तो सेल्फ का फिर तो छोटा सेल्फ हो गया ना। तो उसमें वो प्री कंडीशन है कि आप सोच क्या रहे हो। That means once a self has developed, it is possible for it to continue to exist without social contact. समझे? It is possible to continue to exist without social contact. Change the paragraph.
एक लाइन और लिख दो, विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट और एबिलिटी टू टेक वन सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, और एबिलिटी टू टेक वन सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया अब ये, है ना? चेंज द पैराग्राफ। अब लिख सकते हो द जनरल मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज रिफ्लेक्सिविटी। द जनरल मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज रिफ्लेक्सिविटी। और ability to put ourselves unconsciously into others places, ability to put ourselves unconsciously into other places and to act as they act, full stop. As a result, people are able to examine themselves and other would examine them. People are able to examine themselves as other would examine them. ओके, बात समझ में आई? समझ में आई बात, है ना? This the self also allows people to take part. The self also allows people to take part in their conversations with others. The self also allows people to take part in their conversations with others. यानी जो आप बात कह रहे हो मैं उसी के अंदर आपके साथ हूं, और आपको क्या हो सकता है ये मुझे महसूस है, या मुझे पता है आप क्या सोच सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो सेल्फ हो गया। That is one is aware of what one is saying. That is one is aware of what one is saying, and as a result is able to monitor what is being said, and to determine what is going to be said next, That means in order to have selves, individuals must be able to get outside themselves. That in order to have selves, individuals must be able to get outside themselves so that they can evaluate themselves. So that they can become object to themselves. क्यों जी? To do this, people put themselves in the same experiential field. As they put everyone else. People put themselves, अपने आप को उसी परीक्षण वाली सिचुएशन में वो डाल देते हैं जो वो दूसरों को डालते हैं, जो हम डे 1 से कर रहे हैं। इसीलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि भाई कुछ करो, आता नहीं है, क्योंकि सेल्फ तो मुझे जो करवाना है, मुझे आपकी जगह बैठना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे वही कराना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसका क्या है? तुम्हें कुछ आता है चाहे नहीं आता, मुझे अपनी कथा चलानी है, तो वो सेल्फ नहीं है। सेल्फ वही है जब आप एकदम सूक्ष्म एकदम तरीके से मेरे माइंड से कम्युनिकेट करोगे और मैं जो चाहूंगा वो बोलोगे और जो तुम चाहते हो मैं वो बोलूंगा। उसमें जब झड़प होगी तो फिर तुम्हारे अंदर से एक ज्वालामुखी सा फटेगा, फिर मैं उसको शांत करूंगा तो तुम्हारा लेवल उठेगा, नहीं तो तुम 4 गाली दोगे और भाग जाओगे। ये कह रहा है वो।
So one of the most counter intuitive, यानी कि जो इंट्यूटिव क्या होता है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही तो होता है, यही तो करते हैं, तो काउंटर इंट्यूटिव सोशियोलॉजी क्या है? क्या सोशियोलॉजी काउंटर इंट्यूटिव है? सोशियोलॉजी हमने शुरू से बोला था, समाजशास्त्र क्या है? काउंटर इंट्यूटिव है, जो होता है वो नहीं होता. One of the most counterintuitive and sociologically important assumptions of Mead theory of self is, वाह क्या बात कही है इसने. One of the most counterintuitive and sociologically important assumption of Mead theory of self is that people cannot experience themselves directly. People cannot experience themselves directly. That is why एडमिनिस्ट्रेशन में डाला गया है इसको. दैट इज वाई सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि लोगों को जब तक आप एक्सपीरियंस कल को नहीं कर सकते तो आप उनकी समस्याओं का निदान भी नहीं कर सकते. सो मोदी जी कहते हैं ये फाइल नहीं है, ये फाइल का नंबर नहीं है, ये एक एक आदमी है. बाहर वाला कौन समझेगा इसको? आईएएस ही समझेगा कि वो फाइल नहीं है, वो नंबर नहीं है, वो क्या है? एक एक व्यक्ति है, एक एक नारी है, एक एक नर है. देख लो क्या सोच के सिलेबस का पार्ट बनाया गया है इसको. कितना जबरदस्त सिलेबस का कोर है ये. बिकॉज दे कैन डू सो ओनली indirectly by putting themselves in the position of others. They can do so only indirectly by putting themselves in the position of others and viewing themselves from that standpoint. From that standpoint. So the standpoint from which the standpoint from which one views oneself, the standpoint from which one views oneself can be that of a particular individual, or the whole social group, That is why Mead says it is only by taking the role of others. It is only by taking the role of others that we have been able to come back to ourselves. Only by taking the role of others we have been able to come back to ourselves. That means selves are deeply social in their makeup and character. Deeply social in their makeup and character. ठीक है जी, समझ आई बात? है सबका बाप है ये. तो इसको करिए और कल आपकी इस सेल्फ की जर्नी को आगे चलाया जाएगा. तो यही देख लो आप, एग्जाम का तो प्रोसेस ही जो इसने कह दिया 2 मिनट में, सारे एग्जाम का प्रोसेस है. मीट तो यूपीएससी है, वैसे सारे सब लोग जगह यूपीएससी है, लेकिन मीट ने बड़े अच्छे हर कैंडिडेट को एस्पिरेंट के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया. तो करिए इसको. कल हम प्ले की स्टेजेस हैं, चाइल्ड प्ले स्टेज अलग अलग हैं, फिर आई एंड मी, हम बाकी चीजें देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई डाउट? Wishing all of you all the best. I'll just get back. Thank you very much.
Study hard and smart. All the best. Thank you. Thank you, sir.